Okay, so see, let's talk about Bank Nifty first. Okay, so if you see, what is the structure which Bank Nifty is showing you here? What kind of structure can you see? Technically, if you see, okay, we were in some sort of like markup phase. I'm just drawing it roughly just to show you things out, okay, not some perfection. So यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है. So we were like in a markup phase, okay. Now what happens next? We just fizzle out the momentum here, okay, and you can see we went into consolidation. So this area is like consolidating, okay, this mere points. Now what happens is, from here on we are trying to change the structure. If you see, ये देखिए, markup, consolidation, and then you can see again, if you see the structure tried to change. But if we talk about this pivot, if you would like to see it in a form of pivot points, so देखिए, we can just use, I guess what should we use? Path. That should be good. Okay, so we will use path. So have a look out here. Okay, see, so if you see on a broader note, this directly here then, okay, I'm just connecting the highs and lows as a, so see what's happening here. अभी देखिए, इधर से अगर हम ट्रेंड लाइन भी सब कनेक्ट करते हैं, so let us connect any two trend lines, or you can say this particular thing, or this can also be done here. ये देखिए, as we spoke about, this particular range was a consolidation range, okay. इसको हम थोड़ा और बड़ा करते हैं. See, basically what is happening here, markup से consolidation में गया, इधर इसने एक temporary top बनाया, you can say up thrust, okay. If I just slightly put this thing towards, I just stretch this to a little bit, then you can see up thrust being formed, okay, and a beautiful signal of an outside reversal is also being formed to tell you that yes, price can see a downtrend from here, okay, or price might see some dip from here. If you see, observe this closely. Okay, I have talked about this in previous VCs too, but just for a revision, we can just start with basic analysis. So इधर से देखिए, इधर सब क्या हो रहा है. Now basically बैंक निफ्टी का अगर आप broader structure देखें, तो what is the broader structure? Broader structure में it is in a downtrend, okay, unless we break this particular high, okay, we cannot consider this structure to be a particular change of structure. अब कोई demand and supply follow करता है, तो you can just see this thing as a BOS, okay. Now what is this? Now this particular thing is a spring, either up thrust, either spring, okay, spring buying and just bounce. So if at all, if this thing price अगर कल, let's say suppose, अभी एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, let's say suppose कि प्राइस अगर कल इधर से क्रॉस कर देता है या पिछले अगले 1-2 वीक में इधर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, ओके, ये लो सेफ रहता है, तो व्हाट वी कैन से इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर माइट टर्न आउट टू बी अ चेंज इन अ स्ट्रक्चर, ओके, जिसको कूच एंट्री बोलते हैं ना, CHOCH.
So that can be a particular entry. But what we have to see is according to pivots. Okay, but this is generally like a price trail which you can generally keep as a sort of record, right? So देखिए, अभी हमें इतना तो पता है कि broader time frame में बैंक निफ्टी has a good resistance at around 39,400. Okay, and if we talk about this particular thing, ये देखिए, these particular levels, then what you can see, we have important key levels to mark here now. This is previous week low, previous week ka low. Okay, I will just mark this thing out. Now follow this thing very very carefully. बाद में आप पूछेंगे तो right? So previous week close. Let's keep it black only. ठीक है, ये आपका previous week close हो गया. इसको मैं delete कर देता हूँ. Delete नहीं. This is your previous week high. Okay. Sorry, ये close लिख दिया मैंने. This is previous week low. PWL. Okay. Similarly, this thing will turn out to be your previous week high. Previous week high. Correct. Now we have previous week high, we have previous week low marked. So you can see technically, अब आपको things ज़्यादा clear दिख रही होंगी in a form of a particular sort of resistance zone, that is 37,340 का एक अच्छा zone है, a sort of resistance zone. इसको अगर ये मतलब प्रोटेक्ट करके वापस वीक में कैंडल प्रोटेक्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एंड वी कैन सी एन अपर ट्रेंड, देन बेसिकली वी विल चेंज द ट्रेंड. ओके, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? रैली बेस रैली हो जाएगा. ठीक है, तो ब्रॉडर टर्म में तो हमारा इधर तक का लो वी आर सेफ अंटिल 32,000, बट दिस इज ओनली फॉर अ ब्रॉडर पिक्चर, दैट इज अ टाइम होराइजन ऑफ yearly, you can say 1 year, 2 year. Okay, so that is the picture. Now I will just delete this thing and let's move on to daily. ठीक है, अब हम डेली पे देखते हैं what is the daily scenario. देखिए, अब डेली पे आप अगर आप देखेंगे, डेली में what we are seeing, डेली का स्ट्रक्चर आपको क्या बता. वीकली में हमने देखा वी वेंट मार्कअप. सॉरी, समवन वाज सेइंग समथिंग. ओके, ठीक है. सो वीकली में आपने देखा कि मार्कअप से कंसोलिडेशन और अभी हम बेस के फॉर्मेशंस में चल रहे हैं. ओके, सो मार्केट कैन remain in a consolidation phase for next month also, and on a broader perspective. But इधर अभी डेली में क्या है, डेली में अगर आप देखें एक हल्का सा मार्कअप फेज चल रहा है. ठीक है, दैट इज नॉट अ मार्कअप, certainly a small you can say channel phase or uptrend is going on. Okay, अब इधर से if you see what is crucial points which you can note here. ठीक है, crucial points which we can note here is, let me just check it once. Weekly CP bar. Okay, so I will just fine tune this. This is your previous week low and this is your previous week high. Okay, and this is your previous week high. ठीक है, so we have now perfect levels of previous week low as well as previous week high. So अभी देखिए, ये आपको जो चीजें दिखेंगी ना वो बहुत क्रूशियल होंगी when we move down towards 15 and 5 minutes. So keep a track of what we are analyzing. This should be your daily approach. This is like month में 4 बार, quarter में आपको 3 बार. ठीक है, and daily में आपको
EOD में तो आपको जरूरत नहीं है because you have that indicators on point. ठीक है? So here we have checked out previous week high, previous week low. Now one thing to observe is how many days we are into a consolidation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So definitely what I was expecting is a move of at least 750. Okay, at least इतने का तो अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिक्स भी देखें, those who like to move according to price action basics too, what does that say? देखिए, अगर आपका रेंज इतना है, let's say suppose आपका जो रेंज है that is this particular range, that is 724 points, that is 725. Okay, so ideally अगर breakout होता है on the upper side, breakout होता है तो ideally this should be your initial target, that is 38,700. एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट जाता है, ब्रेकडाउन आता है, तो इनिशियली वी हैव अ वर्जिन सीपीआर, ओके, व्हिच इज टिपिकली व्हाट द केस इट कैन शो यू इन द अपकमिंग वीक. वी विल डिस्कस अबाउट दिस व्हेन वी मूव डाउन टू 5 and 50. ओके, so where is this coming out to be? It is coming out to be around near 36,550. ओके, नाउ हमने ये पॉइंट्स तो मार्क कर लिए. Now we also saw that daily में भी we are moving into a downtrend like structure. Okay, why I'm saying that? Have a look. ये देखिए, I will just switch on the monthly CPR. See, technically हमारा जो मंथली CPR है, ये देखिए, ये जो मैंने बताया था ना, मोमेंटम was so strong here that it did not touch your monthly CPR, but monthly CPR is wide here, so it might act as a magnet. So what I'm saying is, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी from this particular range on either side upwards, as of now we are capped. Why? Because see, understand this thing now. We will move down to like more lower time frame to understand this particular thing. Why I'm saying this. ठीक है, इधर तक आप सबको clear है? Just give me a confirmation, because after this it will get more indicators on chart. Clear है ना इधर तक? हाँ भाई, ओके, ठीक है, नीचे चलते हैं. अब देखिए, what was the structure here? First, let us see the structure of weekly pivots. ठीक है, पहले हम खाली weekly pivots का स्ट्रक्चर देखते हैं. weekly pivots हमें क्या बता रहे हैं? डाउन 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 डिसेंडिंग. ठीक है, इधर से it changed, from here it changed. Okay, what happens? up वीडियो माइक रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, सो नाउ यू सी, अब इधर हमारा स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है. वी हैव अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हियर, ascending, ascending, inside, ascending, ascending. Okay, now for instance, if I just switch off the candles, ठीक है, purely into pivots, this is how I analyze at times. ठीक है, because once you switch off the candle, picture is much more clear to you. At least you know where the price can lead you. ठीक है, अभी देखिए, let's forget about the candles and इधर से हम analyze करते हैं. See, this was a range where we had a particular view. ठीक है, इधर से भी हो सकता है कि next आपका CPR इधर से नीचे चला जाए, no doubt about that. But what happens is, हमने देखा कि कैंडल ने इधर प्राइस को रिवर्स मार दिया. ठीक है, so now this particular resistance from year on till year, that is 1, 2, 3, 4, almost 1 month से जो CPR resistance का काम कर रहे थे, that particular resistance on the 5th week turns out to be a support. ठीक है, that is resistance turned into a support. I'm talking about this particular thing. Resistance
turned into support. ओके, सो इधर से आपका एक चेंज आया है, सो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. राइट नाउ व्हाट हैपेंस अगेन, दिस इज अ सपोर्ट. ठीक है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है. दिस इज अ वाइट सीपीआर अगेन. ठीक है, सो मोस्टली प्राइस माइट हैव कंसोलिडेटेड ईयर टू और वेंट अप, बट इधर आपका क्या हो रहा है, इधर से हमने देखा एक प्राइस चेंज आ रहा है. नाउ लेट मी स्विच ऑन द कैंडल्स. इधर से आपको अब थोड़ा बेटर आइडिया आ सकता है. यू माइट गेट अ बेटर आइडिया ओवर हियर. सी व्हाट इज हैपनिंग विद द कैंडलस्टिक पैटर्न टू. इधर से वी ट्राई टू हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, might be we have seen a new high in Bank Nifty, okay, a new swing high in Bank Nifty if we were able to cross this particular CPR, okay, or make this particular CPR a support again and continue upwards. But what happens here, this is indicating you something. If you remember the previous VC also, we talked about this CPR which will act as a good resistance. Okay, and you can see it followed it precisely. So now what we can see here is, ये देखिए अभी हम इधर क्या देखेंगे, we can see a change of trend here. So for the upcoming week, okay, for the upcoming week until this particular previous week high is taken off, okay, we cannot expect a particular up move to start, or even if this level breaks. ठीक है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से कल बैंक निफ्टी इधर से रिवर्स हो जाता है. ओके, अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ईओडी का, हम करेंगे जब हम 5 और 15 मिनट्स में आएंगे. लेट्स से अगर इधर से प्राइस रिवर्स हो जाता है लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, फॉर इंस्टेंस इफ से लाइक प्राइस कम्स हियर ब्रेक्स दिस. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली इधर से अप मूव जो है, अगर ऐसा कुछ मूव आता है, टेक्निकली ये सस्टेन नहीं होगा, ये वापस नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करेगा. एंड दिस टाइम मोस्टली इट विल ब्रेक एंड टच इट्स वर्जिन सीपीआर. ओके, दिस इज लाइक अ सिनेरियो व्हिच कैन बी पॉसिबल. ठीक है, बट सीइंग द पर्टिकुलर रिजल्ट्स, ओके, अरे सीइंग द पर्टिकुलर रिजल्ट्स आउट, just a minute. Okay, so seeing the particular results of Infy and Bank Nifty, everyone would be thinking of a downfall of only, right? But this was very much you can say anticipate or not that, but you can say like very much predictable. Okay, why? Because see, last time we talked about this particular structure. If you remember, in last VC we talked about this particular thing where the trend got even much more stronger. Okay, you can see a consolidation happened, and same way we took out this particular thing. Okay, we took out this particular thing and went up. ये जो कैंडल है वो पूरा आपका HDFC का इम्बैलेंस है जो मार्केट में आया था. ठीक है, सो दिस वाज पर्टिकुलरली एन एक्सेस व्हिच केम अप, सॉरी एक इम्बैलेंस हुआ. ठीक है, बैलेंस से इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस से एक्सेस हुआ, एक्सेस से वापस बैलेंस में आ रहा है. एंड व्हाट आफ्टर बैलेंस, बैलेंस से वापस ये वैल्यू एरिया में आएगा. ओके, टू फाइंड अ फेयर वैल्यू, what can you think the market can auction? ठीक है, where can the market auction now? Typically अगर आप देखें तो your fair auction is at around this particular virgin CPR, because this is the only untouched level which the market can come and like hold on for some time. इधर से प्राइस टूट के नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, and we can travel further towards this particular target. But this is the ultimate target. ठीक है, इधर से इधर तक आने से पहले आपके डेली सीपीआर्स भी रास्ते में आएंगे. सो यू हैव टू क्लियर दैट आउट ऑल्सो. सो वी विल टॉक अबाउट दैट टू. बट टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर स्ट्रक्चर हियर, ये देखिए, यू कैन सी वी हैव चेंज्ड द ट्रेंड ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. मतलब इधर से फॉर नेक्स्ट वीक एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन मूव.
ओके, अप मूव आया तो सस्टेन नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल वी टेक आउट अ न्यू स्विंग हाई. ओके, सो मेजरली वी कैन फॉल tomorrow or in the upcoming week. ठीक है, the full week we can see a neutral to down bearish moves. Mostly this particular CPR would be our first target, this virgin CPR. Okay. Now अरे यार म्यूट कर लो यार. ठीक है, so see, now I will just turn on the monthly and daily too. Have a look. ठीक है, now if you see the daily CPRs का ट्रेल, डेली CPR के ट्रेल अगर हम देखें, then let's have a look. This particular virgin CPR, अब देखिए what I was talking about. This particular virgin CPR would not hold. ठीक है, because this is too narrow. इधर का प्राइस आ भी जाता है, ये हो सकता है कि एक विक में ही प्राइस इसको तोड़ दे एंड वापस ऊपर भी चला जाए, लिक्विडिटी हंट करके वापस ऊपर चला जाए, राइट? So this is not an area where you can say price might just consolidate for some time. No, it would just straight away break it, right? Whereas ये particular area में, ये देखिए, look at this particular CPR. This particular CPR is a good white CPR, okay? ये देखिए, so in this particular area, price can come, touch here. ठीक है, it can halt here. Why this particular narrow and wide are important to analyze is, narrow में it can just straight away break, okay, because इधर कुछ उसके पास range नहीं है, right, to make a particular decision or to be indecisive. But here it has a particular range to get the market into indecisive mode, where they can hunt for further liquidity for a further move. Okay, which is healthy for a good up move or a down move. That is the basic price structure which is healthy for the markets. So either we can expect some halt and then again iska jo pivot hai, weekly pivot, I will just plot it. Where is weekly pivot? Weekly. Let's say cross. ठीक है, so इसका जो weekly pivot है, at least this level is very important to us. That is around 364,460. So let's keep it at 60. Okay, 36,460 or around number 36,450. ठीक है, so ये level जो है वो important हो सकता है for seeing the further momentum on the downside. So now our structure can turn out to be like this. ये देखिए, price can mostly what I think is it will gap down. Okay, gap down below 260, 265 कल. Mostly it can do that for a good break. ठीक है, to break this particular range it might just gap down. But before we discuss this, something more crucial you have to analyze, which we marked in the previous week too. अगर आप देखें, two important crucial points. 6th of April, what is happening? ठीक है, 6th of April का मैं high mark करता हूँ, ठीक है, and 6th of April का मैं low mark करता हूँ. Now do you sense something? This chart I sent across the group too. ठीक है, marking a upper range and marking a lower range. Is this making some sense to you now? Charts should be more clear to you now, I guess. What is this? मैं इसका color change कर देता हूँ just to keep things even. Let's put orange. ठीक है, so see, ये आपका पर्टिकुलर जो एक एरिया बन गया ना, ये एरिया बन गया है आपका प्रीवियस वीक हाई
and 6 days high, previous 6 days high. ठीक है, मैं लिख देता हूँ just for your information if you want to track previous 6 day high. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, yes. So this is previous 6 day high, bottom. Okay, and this particular thing bottom में shift करते हैं. This particular thing is previous 6 days low. I hope all are up with me up till here. Okay, ठीक है, these are some crucial points which will act for the whole week. ठीक है, so now what can be a price action according to the pivot? See, this is a road map now. अब अगर हम रोड मैप के हिसाब से चलें, what is our particular or most likely moment which can happen? So we can see a gap down from this particular region, either या तो फिर mostly इधर एक gap down हो सकता है. अगर कल प्राइस इधर से gap down होता है, mostly इधर से एक reversal आएगा, this, and we can expect this particular thing to happen. Okay, this can be the first path which we can see. और just to be more precise, इसको अच्छे से मार्क करते हैं. Just one question. This 36,450 is the Virgin weekly pivot which you have marked? Yes. Okay. Okay. ठीक है, मैं इसको भी I will also signify this. So why we are not marking 36,750? Because that is 36,750. What is that? It is the BC of that this daily This thing? Virgin CPR. No, not required. See, I have marked this particular zone, this Okay. entire zone I have marked. Okay, there is no need of a certain level because see, I will tell you why. ये देखिए, अगर कल तो प्राइस इसी रेंज में आ जाता है, I will tell you the scenarios also. See, if we open below this level, okay, tomorrow, what can be your further action is, we can come up till here, again we can bounce. This particular support, ये जो 6 days का support था, वो resistance में turn होने के ज़्यादा chances रहेंगे. Okay, and then we can finally achieve our weekly pivot target here. Initial target आपका इधर रहेगा, okay, और ultimate target जो आपका रहेगा वो इधर रहेगा. इधर से further अगर breakdown आता है, ठीक है, then we can expect some major bearish moves which can come up, okay, or which can show up. ये थोड़ा और perfect कर दिया, ठीक है. In case of this particular thing happening, see, this is not for intraday. What I'm talking about is for the whole week. ठीक है, इंट्रा तो हम डिस्कस करेंगे. Swing, not positional. ठीक है, short swings. So this is what is ideally a road map. ठीक है. Now second condition what can happen is, if we, let's say suppose we open here or we open here, then most probably अगर यही रेंज में ओपन होते हैं हम, ठीक है, most probably we'll take a support here, again chances are of that, again we can trace here, okay, but इधर अगर अभी प्राइस आएगा तो most probably it might go to touch this thing here, and then you can expect a good fall, then you can expect a good fall to continue. अरे बंद हो गया यार. Okay, you can expect a good fall to continue till here, ठीक है, but this particular thing is not convenient here, okay, because we saw
that we are changing the trend here, ठीक है? तो अभी के लिए we will strike this off, we will not consider this, because we know according to the pivot we have to clear this particular area. Despite of that, पहले बात तो हमें ये जोन कल सस्टेन करना होगा, सबसे बड़ा टास्क होगा ये जोन को सस्टेन कर पाना कल. मोस्टली वी विल ओपन गैप डाउन, ओके. अगर न्यूट्रल भी खुलते हैं, क्योंकि I don't particularly believe XGX, okay, it is like a bluff only. So if also we open neutral for any chance, because see, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा why I am telling neutral, okay, उसका भी reason मैं आपको दूंगा when we come down to 5 or 15 minutes. So see, टेक्निकली ऐसा ही मुझे व्यू लग रहा है. अगर हम न्यूट्रल भी खुलते हैं तो न्यूट्रल खुलने पे भी क्या हो सकता है हमारा प्राइस व्यू, दैट इज मोस्टली वी कैन जो इसका डेली सीपीआर या डेवलपिंग सीपीआर होगा उससे रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट ही होता रहेगा, ठीक है. मोस्टली इट माइट जस्ट गो इनटू कंसोलिडेशन लाइक दिस. इफ प्राइस ओपन समवेयर हियर, ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसोलिडेशन में चलता रहेगा एंड देन सेकेंड हाफ में आपको ब्रेकआउट दिख सकता है, ठीक है. अब सी, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं. नाउ जस्ट टू सिग्निफाई दिस इज वर्जिन वीकली पिवोट, ओके. आई मार्क दिस टू एज वर्जिन वीकली पिवोट. नाउ डेली पिवोट भी मार्क कर देते हैं. Okay, so this is daily virgin pivot. What is this level coming out to be? What is this level coming out to be? 36,860. Okay, see, I am marking it roughly. You can if you want exact levels, then you can just go down there. So see, this price action is more convincing, okay. ऐसा कुछ आपको नेक्स्ट वीक दिख सकता है, राइट. ये जो सिनेरियो, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे व्हेन वी सी दैट थिंग इन 5 और 15 मिनट्स. इसका भी हम प्रेडिक्ट मतलब एंटिसिपेट कर सकते हैं दैट इफ टेक्निकली प्राइस हैज टू कंसोलिडेट हियर, इसको ब्रेक नहीं करना है और वापस ऊपर जाना है, ठीक है, तो उसके भी सिनेरियोस क्या होंगे और कैसे होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट मोस्ट लाइकली प्राइस कैन सी अ डाउन मूव, ठीक है. व्हाट आई फील इज लाइक ऑन अ पोजिशनल नोट वी कैन सी प्राइस कमिंग टिल हियर. फ्रॉम हियर फर्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 2.5% का फॉल, एंड आई थिंक दैट it might just stretch out till here. That is around 2000 to 2100 points fall, okay. That is around 5 to 6% from where we have closed today, closed in the last trading session. So this is what is my view for a positional trade, but it will change. See, it will change if Bank Nifty crosses this particular level, or you can say it crosses 37,870, okay. 37,870 अगर वो क्रॉस करके एक दिन भी उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, आवरली क्लोज, बिकॉज यू सी देयर इज नो आवरली क्लोज. इधर से जो था इसका आवरली क्लोज इधर से ही गया है, देन अगेन नो कैंडल वाज एबल टू क्लोज अबव. सो इवन इफ आई क्लोज दिस थिंग हियर, और अगर कल ऐसा अगर आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यू कैन टेक अ स्विंग ट्रेड कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस. दैट इज 37,870 आवरली बेसिस पे, आवरली क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके यू कैन गो फॉर अ पोजिशनल शॉर्ट, ठीक है. इनिशियल टारगेट्स पे आप बुक करते रहना. रिमेंबर, इफ यू आर कैरिंग दोस पर्टिकुलर थिंग, इवन इफ द सेटअप इज कमिंग, देन ट्राई टू बुक some here and carry some for here, ठीक है. अगर इसको ब्रेक करता है डिसाइसिवली and then this particular point is breaking down, then you can add some more quantity for this particular target,
ठीक है, into your shorts. So that is ultimately on how you have a hold of your risk management. ठीक है, so this is technically for the whole remaining of April. What a simple pivot you can say you. ठीक है, what is the view for the remaining April is we can see neutral to bearish momentum. ठीक है, I have a target of around 2000 point fall is what I'm eyeing, but I may also be wrong. How I can be wrong is particularly अगर ये particular price action कल follow नहीं होता है या फिर हम ऐसा कुछ price action बना के हम वापस इसको ऊपर तोड़ते हैं, ठीक है, then I will just be much more cautious because we saw that on a broader time frame we are into a base zone, ठीक है, and that too a rally and a base, so it might just turn out to be drop also. ठीक है, ड्रॉप कब होगा जब वी माइट जस्ट ब्रेक दिस थिंग एंड कंटिन्यू डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो अल्टीमेट टारगेट जो है वो मेरा इधर तक तो है ही. व्हाट आई एम आइंग इज 35,200 तक तो हम एक बार देख सकते हैं प्राइस को. ठीक है, मे बी नॉट बाय एंड ऑफ अप्रैल, अगर ये जोन भी तोड़ के रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है, मे बी नॉट बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बट मोस्टली मई में भी आप इसको देख सकते हो. So upcoming view can also be like bearish until and unless we cross this particular zone. Very crucial because see, this is where the axis came, the imbalance happened. Okay, and this particular thing, ये इतना बड़ा जो है ना, ये पूरा axis है. Imagine the amount of stop losses taken here. You can imagine that massive stop loss hunting which has been done here. This is not like intraday players. Okay, remember this thing. HDFC Bank both like had a rise of around 16 to 17% each, okay, on single intraday moves, and way back they closed at around 7 odd percent each on the end of that particular day. Okay, so you can imagine what amount of liquidity this has hunted off in intraday movers, positional, even swing, even positionals, and even some you can say like वो बोलते हैं ना condos वाले जो players थे who are trading into like monthly options or even like far away OTMs monthly options. ठीक है, तो उनके भी stop loss mostly hunt हुए रहेंगे, right, just because of HDFC twins giving a access move to the market. And you know why this move happened. We discussed about this because this is the area in Nifty, बैंक निफ्टी में जो दिख रहा है सिमिलर निफ्टी में भी वैसा ही था. निफ्टी में वो यही एरिया है जहाँ से FIIs ने सेलिंग शुरू किया था. ओके, द मैसिव 1 लाख करोड़ प्लस ऑफ सेलिंग विच यू सॉ was this particular point when Nifty saw the selling coming from, that is 17,800, 880 odd levels. Okay, that is why we also spoke about in the previous VC. ठीक है, कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो why it would break with a go. It has to do that and it did that. But I don't think anyone was expecting this kind of move to happen with the help of HDFC twins, right? So this was a shocker for the market. That is why you see a excess move and then a balance going on for straight 6 days. And now you can see an explosive move coming out. At least 750 points का तो move है. ठीक है, initial target अगर हम price structure के हिसाब से देखें, that is what I have shown you. Okay, but initially what I think is we can have this move in a short swing trade. So make your plans. ठीक है, make your plans. We have made our plans. You have to just execute that plan depending upon how we progress. Okay, so see, अभी हमने डिस्कस कर लिया ये सारी चीजें. अब हम जाते हैं फॉर इंट्राडे. कल अब क्या हो सकता है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो. दिस इज डेली वर्जिन पिवोट. आई विल मार्क दिस टू डेली वर्जिन पिवोट DVP, and let's take this to 14. Okay, and let me change this to blue.
so that it just matches. Perfect. So see, अभी देखिए, इसको मैं हल्का सा हटा देता हूँ. अभी इंट्राडे भी हम चेक करते हैं. See, for instance, I am just closing this particular thing off. This too, and even you can say this too, and we can add. Perfect. So okay. So see, we have next week ka next day ka, that is a bearish GPZ. Okay. Now listen to this very carefully. This can help you tomorrow if you are willing to take some good move in Bank Nifty. Bank Nifty can give you some good moves. ठीक है. So see, ये level किधर आ रहा है? L3. So basically we will trail this further until here. So अगर ये L3 के नीचे खुल रहा है ना, sustain नहीं हो पा रहा है, ठीक है, mostly this is what you can see in the upcoming week. ठीक है, या upcoming day also possible है ऐसा move आप आना. Okay, down, up, down, very very possible. अब remember, we have a bearish GPZ, so at least we have a trend set. What I mean by trend set is, हमें पता है कि जब तक ये लेवल नहीं जाएगा, that is this thing 37,700, जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर लेता बैंक निफ्टी, वो कल के लिए बेरिश ही रहेगा. Are you understanding what I am trying to convey? Because it's a bearish GPZ. Logically, अगर हम देखने जाए तो. So what we can expect is, अगर कल मार्केट खुलता है, अभी तो हमने डिस्कस किया अगर मार्केट L3 के नीचे खुल रहा है, ओके. अभी हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे में अगर वो H3 और L3 के बीच में खुलता है, ओके. What if price opens between L3 and H3? What can be the move? Let's see. So see, let's say suppose, okay, any one of you can just tell me where should I place the opening print. ऊपर की तरफ place करे, H3 की तरफ place करे कि L3 की तरफ place करे. According to that we will analyze. Any one of you can just go unmute yourself and tell me. Be quick. ठीक है, इधर place करूँ, okay? चलेगा, इधर कहीं place करूँ ना? Yes. ओके, गैप डाउन की संभावना है. ठीक है, चलिए आपके व्यू के हिसाब से हम इधर देख लेते हैं. गैप डाउन तो हुआ तो मतलब हमें पता है कि किधर हमें लेना है. ठीक है, इससे नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हो रहा है, यू विल जस्ट वेट. अंधाधुन सेलिंग में नहीं आ जाना, ठीक है, बिकॉज मोस्टली कल ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन सी अ मैसिव गैप डाउन, सीधा इधर ही खुल रहा हो प्राइस सीधा इधर ही खुल रहा हो, ओके, एंड इधर से रिवर्सल आके वापस इधर हिट हो. सो वेट फॉर योर levels to hit up. ठीक है, don't jump into trades because if you see risk to reward of year, अगर इधर से आपको रिजेक्शन आ रहा है, most probably you can trail your target till year. इसका जो risk to reward है ना, ये बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको. So wait your price levels to show you something. इधर से हाँ, definitely if you are into this particular zone and इधर से आपको कहीं रिजेक्शन आ रहा है, like if you see some outside reversal, extreme reversal patterns showing up somewhere here in this particular zone, definitely go for a short buy. ठीक है, not any harm in that, but that too would be dicey because we can just continue the down move. उसके बारे में हम बात करते हैं, कब ले सकते कब नहीं ले सकते. ठीक है, so let's first talk about this thing. So let's say बैंक निफ्टी कल H3 और L3 के बीच में खुल रहा है somewhere here, okay. So this would be very very interesting to see up till first 60 minutes to max 90 minutes of the market. ठीक है, मतलब इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक अगर तो इसको ट्रेंड चेंज करना है, लेट्स से सपोज it is not willing to break this particular range, then what can happen is it will just show you something like this thing again L3. ठीक है, and before 11 PM
or sorry 11 a.m. first 90 max 90 to like 100 minutes of the market, that is max to max. अगर हम max to max range पकड़ ले first 2 hours of the market, ठीक है, 11:15 तक अगर इसने ब्रेक नहीं किया, अगर इस CPR को भी ब्रेक नहीं कर पाया, डेफिनेटली यू कैन सी अ मूव लाइक दिस, सेकेंड मूव लाइक दिस, अगर तो ये H3 और L3 के बीच में खुल रहा है एंड इन द फर्स्ट max to max 2 hours it is not able to cross the CPR. Remember this particular price action what I am speaking, this is very very crucial. ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ so that you can have a reference. I hope everyone is clear why I am saying this. ठीक है, वेरी वेरी लॉजिकल ट्रेड है, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड है ना, आपको ये काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है अगर ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है कल मार्केट में. सी I am marking every pattern. Why? Because we have to be ready with every possible scenario which can happen in the market. But remember one thing, ये इतने सारे सेटअप्स जो आपको मैंने दिखाए, ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जो आपके काम का होगा, बाकी सब वर्थलेस हो जाएंगे. एंड वो भी आपको कब पता चल जाएगा? द मोमेंट मार्केट शोज यू द ओपनिंग प्रिंट. एज सिंपल एज दैट. ओपनिंग प्रिंट, जिधर भी आपको ओपनिंग प्रिंट दिख रहा है उधर से आपका वो सेटअप, जैसे ओपनिंग प्रिंट इज बिटवीन H3 L3, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉलो दिस पर्टिकुलर सेटअप. ठीक है, अगर ओपनिंग प्रिंट इज बिलो L3, फॉलो दिस सेटअप. ठीक है. नाउ वन थिंग इज, इफ द मोमेंटम, सी बिकॉज दिस वाज द एरिया ऑफ इम्बैलेंस, ठीक है, इधर से इम्बैलेंस आया और इधर से फिर एक्सेस आ गया. सो मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कैन गिव यू a reviewed view of, it can break here, it can hit the CPR and again it can travel down. Are you understanding? Means what it will try to do is similar kind of move what I'm trying to say about this thing, but इसको हल्का सा आप नीचे कर दो, that's it. ठीक है, मतलब वापस से हल्का सा आपको ट्रिक कर सकता है up till this particular level 37,200, वापस से इधर से ऊपर जा सकते हैं, just to ensure लोगों को लगेगा कि वापस रेंज में जा रहा है या ऊपर जाएगा. बट यू नो until and unless this CPR is taken out, no need to long any of the banking stocks. Remember this, do not long bank nifty. इधर आप लॉन्ग करेंगे एंड इमीडिएट स्टॉप लॉस हिट होने के चांस रहेंगे. दिस थिंग विच इज गोइंग टू हैपन वुड बी वेरी वेरी इम्पल्सिव. ठीक है, सो यू विल नॉट इवन गेट टाइम टू एग्जिट, पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट कीप एन आई. देखिए H3 के ऊपर खुलने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं मेरे को, दैट इज व्हाट आई फील. बट टेक्निकली आपको पता है प्राइस अगर H3 के ऊपर खुलता है या ये जोन के ऊपर कल खुलता है, ठीक है, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ भी न्यूज आ गया, कोई अब्रप्ट न्यूज आ गया, गुड न्यूज आ गया, मार्केट चेरिश कर लिया, ठीक है, लेट्स से ऊपर खुल जाता है, तो आप वेट करेंगे CPR को सपोर्ट बनने का. ठीक है, बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी नैरो रेंज हियर. लुक कुछ ऐसा, वेयर इज द ब्रश हियर. सी इफ प्राइस इज ओपनिंग समवेयर हियर अबव द CPR, तो आपको डेफिनेटली पता है what you have to do. Above the CPR you just have to like wait for the CPR to be turned out into a support, and then you can buy here and sell here. ठीक है, initial target here. But ये तो आपके तीनों सिनेरियोज हो गए. Now let us focus on what is going to be the intra moment. ठीक है, इंट्रा मोमेंट क्या हो सकता है इसका. सो उसके लिए हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स आवर 5 minutes टाइम फ्रेम. लेट्स सी व्हाट कैन हैपन. व्हाट काइंड ऑफ CPR इज दिस? एनीवन प्लीज क्विकली यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ CPR you can see here. What is the relationship of CPR? Outside value CPR. Sorry? Outside value CPR. The next day CPR engulfs the previous day CPR. The two relationship. Yeah. Perfect. So what does that tells you? What So should be the moment?
the price can be like volatile. मतलब price can be in a range. We don't expect a trending day, like an extreme trending day. We cannot expect. But if the at after certain point, if the initiative buyers or sellers kick in, then we can even see a good move. Like price could consolidate, move in a range for a while, and then break that range, and then give you a good move, downside or upside, depending where it's break. Okay, ठीक है. Yeah. Fine. So let me switch this thing off too. Okay. So now here, if you see, we have a relationship as an outside reversal. So technically, what does that tells you? What is that particular thing telling you? That particular thing is telling you that price can remain in a consolidation phase. Okay. So mostly, if it has to remain in consolidation, it has to like protect this particular thing. So mostly, अगर हम इंट्राडे के हिसाब से देखें तो ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है, दैट इज मच मोर फेवरेबल. ठीक है, ये ब्रेकआउट का आप छोड़ दो. मोस्टली वी कैन सी दिस थिंग कंसोलिडेटिंग हियर, एंड सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे दे, नॉट अ बिग डील. सो दिस कैन इवेंचुअली टर्न आउट लाइक दिस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2-day relationship of the CPR. But now anyone can tell me how we can like how you can analyze like what type of day it can be, like what type of formations you can see in that particular intraday. Let's say कि आप सबको लग रहा है कि कल गैप डाउन हो, let's say हम सबको लग रहा है कि कल बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है, फॉर इंस्टेंस. ठीक है, we can see that previous week low के नीचे प्राइस खुल रहा है. ठीक है, it might just go down and then come up and then take resistance again, go down. But what like now we saw कि ये तो हमारा एक पोजिशनल व्यू हो सकता है, लाइक स्विंग व्यू हो सकता है, ये हमारा इंट्रा व्यू हो सकता है. ठीक है, वी कैन जस्ट डू दिस थिंग एंड कंसोलिडेट बिटवीन H3 and L3. ठीक है, एंड वी वुड जस्ट प्रोटेक्ट L4 and H4. ठीक है, H4 तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, इट इज बेसिकली L4 ईयर. ठीक है, तो L4 भी मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल. अच्छा, इसमें L4 तो होगा नहीं, जस्ट अ मिनट. दिस थिंग हैज L4. यस, इट हैज L4. So somewhere here. So आपका वो आपका आ गया 37, 140, 150 का आपका. Okay, so see, this can happen. Now this thing has to be shut off. Okay, so see, अभी देखिए, अभी the most important factor to see out here is what I said about pivot width. ठीक है, pivot width आपको क्या बोल रहा है, ये बहुत ही important हो जाएगा आपके लिए, because that would like tell you what can particular Bank Nifty do, or what kind of formation can Bank Nifty form. ठीक है, so any one of you can just tell me how can we analyze that? How can we like analyze what kind of formations can Bank Nifty show you? Anyone? Mukul bhai, are you asking like what type of day the mentioned in the book can occur tomorrow? Yes. So one probability which I am seeing is कि if price is opening gap down, then price could go down for a bit, then come up. This is ये guessing पे नहीं चलेगा.
ठीक है, इसमें इस yes. क्वेश्चन है ही नहीं, इट इज क्लियर कट जी. पिक्चर. So Okay. I'm asking you that how can you analyze that? You are right about that particular thing, but we analyze that thing through the 2-day relationship and camera relationship. ठीक है, Yeah. but the pivot with है, so it is very specific. Oh, okay. So, so you are asking me that depending on the opening print, how can price react between these levels in front No. of chart? Oh, then I'm not able to understand. Like, See, okay. Anyone else who wants to try? Who wants to try before we get into the solution? You can try at least. किसी को try करना है कर लो. No one. ठीक है. So see, what is the pivot width here? If you calculate it roughly, what is 37,700 and 37,500? That is 160. It is somewhere below or in between 0.25 to 5. ठीक है. So what does that mean? उसका मतलब क्या होगा? That is, आपका जो 30 मिनट्स का आपको देखना है, अगर तो प्राइस कल गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये गैप डाउन इधर कहीं खुल सकता है, ठीक है, ये इधर नहीं खुलेगा, या L4 को भी प्रोटेक्ट करेगा ये मोस्टली. ठीक है. what it can show is the type of day which can turn out to be is trading range day to trending day. Okay, या फिर ट्रेडिंग रेंज डे टू साइडवेज, बोथ आर ओके. ठीक है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग रेंज जो भी आएगा आईबी के हिसाब से, ठीक है, दैट वुड टेल यू फॉर अ फर्दर मूव दैट वेदर द प्राइस इज गोइंग टू बी साइडवेज और वेदर द प्राइस इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट डे. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन इज एग्जैक्ट अगर पिवट विड्थ की वैल्यू चाहिए तो एक मिनट, आई विल जस्ट कैलकुलेट दैट. See, so it comes out to be around 0.42. Okay, 0.42 का width है. So it is technically sideways तो नहीं दिख रहा है. Pivot width के हिसाब से अगर हम देखें तो this price action seems like more convenient which can occur. ठीक है. Mostly we can see कि first half आपका sideways गैप डाउन के बाद थोड़ा साइडवेज हो सकता है इफ देयर इज नो मार्केट इज ट्राइंग टू लाइक बैलेंस आउट. ठीक है. मोस्टली अगर वो गैप डाउन इतना खुल रहा है, मोस्टली L3 के पास वापस आएगा, ये प्राइस के पास वापस आएगा रीटेस्ट करने. समथिंग लाइक दिस कैन हैपन एंड देन अगेन इन द सेकेंड हाफ यू कैन सी अ ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड टुवर्ड्स द CPR. राइट. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी सी निफ्टी. This is very very interesting. ठीक है. ट्रेडिंग रेंज डे टू साइडवेज, ट्रेडिंग रेंज डे टू साइडवेज डेज कल पॉसिबल है. सो इट इज वेरी क्रूशियल टू वॉच आउट फॉर 30 मिनट्स का IB. ठीक है. कल हम लाइव देखेंगे. अभी के लिए सब आप ध्यान रखिए वॉट एवर वी स्पोक. कल मैं लाइव बताऊंगा कि what we are going to see live on the charts. Okay, or what the market can do live. अभी देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था दिस काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड. आई टुक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. हु वाज दैट? कैन यू जस्ट टर्न ऑफ switch on your mic and just let me know. Someone asked me about this trade, right? ये वाला ट्रेड के बारे में पूछा था किसी ने. Are you there or did you went off? हेलो. ठीक है, लेट इट बी. नहीं है. ओके, सो दिस वाज व्हाट वी एनालाइज फॉर बैंक निफ्टी. अब देखते हैं निफ्टी और उसके बाद कंक्लूजन. दोनों का हम कोरिलेशन देखेंगे. विच कैन डोमिनेट, हु कैन डोमिनेट हुम. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नाउ.
निफ्टी ऑन द अदर हैंड इफ यू सी इज मच मोर इंटरेस्टिंग. इसका सुनिए, इसका अब मैं थोड़ा फास्ट पेस पे जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज बैंक निफ्टी में स्लो इसलिए गया ताकि सबको समझ आए व्हाट इज हैपनिंग. नाउ फॉर निफ्टी आई विल गो ऑन अ फास्ट पेस, सो प्लीज have your concentration here if you want to like see some good stuff here. So 3 2 1 let's go. So ये देखिए निफ्टी में तो क्लियर कट आपको कुछ देखने का मतलब इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है. Why? Because see, I will show you this thing here. Simply, if you remember, while we were somewhere here or here, somewhere here, okay, we talked about a level of 18,340. ठीक है, this is documented on the channel. Somewhere here we were somewhere here and we had a level here. From here we were expecting a fall. ठीक है. Now why I was saying this, ये मैंने VCs में भी बताया था. Those who might have attended this particular session might recollect. ये देखिए, this is a weekly supply. Okay, a weekly supply, but what a beautiful formations it is showing you. Look, ये वैसे मैंने बहुत बार बता दिया है, but again like a sort of revision, I will go a little bit fast. Be with me. ये देखिए, outside reversal, correct. Again outside reversal, similar case of bank nifty. Bank nifty निफ्टी दोनों ने outside reversal के साथ ही रिवर्स किया था, if you remember, right? वीकली पे हमने देखा था. ये देखिए, दिखा देता हूँ. वीकली पे हमने देखा था सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच वाज फॉर्म. ठीक है, जब निफ्टी में ये वीकली सप्लाई बना, बैंक निफ्टी में आउटसाइड रिवर्सल बना समवेयर 25 अक्टूबर. व्हाट इज दिस डेट? 18 अक्टूबर. ठीक है, निफ्टी में सप्लाई बना, बैंक निफ्टी में आउटसाइड रिवर्सल बना. वन इन द सेम थिंग, सिमिलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, what happens here? Now Nifty creates a outside reversal, Bank Nifty follows. Look, 17 Jan around, ये क्या डेट है? हाँ, ये रहा 17 Jan. See, Bank Nifty follows, but here you can see who is stronger. Here, even here Bank Nifty was stronger than Nifty. Even here Bank Nifty is stronger than Nifty. ठीक है, अब let's check here. इधर कुछ हमें दिख रहा है क्या? Now see, we have a particular immediate, you can say a small kind of demand in between this particular candles. Okay, that is 17,000 से 17,000 कितना था लेवल? 17,440. वही जो हमने रेफरेंस दिया था, if you remember, right? We took a long trade too, where we saw day high wala trade. If you remember, I have sent that message. ठीक है, somewhere around ये था, ये वो दिन था. Sorry, previous to previous trading session, जो अभी close हुआ उसके previous trading session में था, which went day high. ठीक है, that was a range of around 480 to 520. 440 was a reference level. So कल के लिए भी 440 या अपकमिंग वीक के लिए 440 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल. ठीक है, 17,440 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. और ऑन द डाउन साइड 16,980 से लेके 17,060 ये लेवल पे एक अच्छे खासे बार बैठे हैं. ओके, विच वी सॉ इन द प्रीवियस वीसी एंड इन द पोजिशनल, वो बजट सेशन नहीं, बजट नहीं, सॉरी, कोई तो एक हमने वीसी में डिस्कस किया था वाई. ठीक है, अभी वो डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा. समवन हु रिमेंबर्स कैन जस्ट पोस्ट दैट इन द चैट ग्रुप. ठीक है, बेसिकली उधर से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी एंड उसके लिए मैंने उसका किसी को पोस्ट रेफर करना है तो वो पिंड भी होगा. दैट इज समवेयर विद द कीवर्ड ऑफ 15,900 वीकली क्लोजिंग. ठीक है, इधर हमने कुछ एनालिसिस किया था, 15,900 वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए तो वापस आप अप ट्रेंड में जाएंगे. ठीक है, तो समवेयर अराउंड हियर बायर्स आर टू स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ये अभी एक आपका डिमांड जोन है. बट इफ यू सी बैंक निफ्टी नाउ, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर इज, ये देखिए
योर निफ्टी इज ट्राइंग टू टेक चार्ज. बैंक निफ्टी हमने देखा बेस कैंडल्स, ठीक है, इधर से इसका फॉल रोकने के लिए कुछ भी नहीं है. आप देखिए इसका डिमांड किधर तक, 35,000, ऑलमोस्ट वही जो मैंने बताया था, 2000 पॉइंट्स, ठीक है. सो इफ यू सी स्ट्रक्चर्स आर चेंजिंग हियर. आप समझ रहे हैं? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन इफ यू गाइज आर लिसनिंग, इफ यू आर स्टिल देयर. हाँ मुकुल भाई सुन रहे. ओके ठीक है. देखिए इधर तक हमने देखा था बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक है. दोनों केसेस में बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी से, ठीक है. बट इधर थिंग्स आर चेंजिंग आउट. सी निफ्टी हैज अ गुड डिमांड बट बैंक निफ्टी हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ डाउनफॉल. Okay, so here things are changing. Either say Nifty will take charge and Bank Nifty will follow. अभी तक क्या आ रहा था, Bank Nifty was taking charge, Nifty was following, but now structures are changing. Remember this very important thing, because if you want to pick up stocks, I will not give any recommendation to buy or sell. I'm just giving you a hint. If you want to enter into long-term stocks, don't enter aggressively into especially NBFCs, banking stocks, unless and until you know if we break swing highs. Okay, because down moves दोनों में है, लेकिन Nifty is much more sophisticated and controlled as of now. ठीक है. So the best areas would be like if you want to look out for metals, autos, and metals are like looking good, then PSUs, PSEs, and one can be FMCG. ठीक है. Apart from that, we will look out what is going out or what is turning out as a good investing option. But for time being, do not go positional longs on NBFCs or financial stocks. ठीक है. You know why we are doing why we are talking about this thing. ठीक है. अगर बैंक निफ्टी इधर से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है, लेट्स से निफ्टी इधर से ही रिवर्स मारता है, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी टर्न्स आउट एज अ गुड रिवर्सल बट अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, इसको एक झटके में ब्रेक करता है, देन यू विल सी banking stocks getting that particular, you can say, zest of short coverings. Okay, short coverings के साथ you can see long build-ups too in terms of positional basis. ठीक है. So ये आपको जर्नली मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दे दिया of sector analysis too for the upcoming at least 1 quarter. Remember that. ठीक है. So at least financial stocks में तो आप छोटे swing trades ही लेना. Don't go into positional longs or something like that. For timing at least. ठीक है. तो निफ्टी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वीकली पे कितना अच्छा सोफिस्टिकेटेड है. अब इसके बारे में तो मैंने बहुत बार बात कर लिया है, कितनी बार ही बताऊं मैं. ये देखिए, एटलीस्ट आई एम रिपीटिंग दिस फॉर अराउंड, आई हैव रिपीटेड दिस ऑलमोस्ट आई गेस 20-25 टाइम्स तो मैंने बता ही दिया होगा अलग अलग बंदों. ये देखिए, अरे यार जा, ये देखिए आउटसाइड रिवर्सल, ये वीकली सप्लाई जैसे शुरू हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ आउटसाइड रिवर्सल, अगेन इधर एक आउटसाइड रिवर्सल है, अगेन फिर इधर एक आउटसाइड रिवर्सल है. ब्यूटीफुल पैटर्न. ये आपका ऑलमोस्ट यही लेवल था. सी 18,340 340 था हमारा, 350 तक चला गया, बट नॉट एन इश्यू. बट ऑलमोस्ट आवर एनालिसिस वाज सेफ. ठीक है. व्हाई? बिकॉज सी इसके अंदर एक डेली सप्लाई है, फ्रेश, अनटच्ड फ्रेश. ये देखिए. ठीक है. एंड व्हाई इट वाज सो स्ट्रॉन्ग, इधर से हमने क्यों सेलिंग के लिए व्यू पॉइंट बनाया था, बिकॉज सी ये जो आउटसाइड रिवर्सल था ना, ये जो आउटसाइड रिवर्सल था, दैट टुक आउट द रेंज ऑफ 1 2 3 4 डे रेंज के नीचे क्लोज दिया था उसने. दैट इज नॉट नॉर्मल. ओके. भले आप बोलोगे कैंडल छोटे दिख रहे हैं, हो सकता है, बट डू यू थिंक ये हर दिन होता है या हर हफ्ते आपको ऐसा कुछ दिखेगा? नो. करेक्ट. दिस वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल. ये पहली बात तो ये
आपके वीकली सप्लाई में आ रहा है, उसके बाद डेली सप्लाई में भी है, और उसके बाद एक आउटसाइड रिवर्सल बना रहा है. व्हाई वुड यू जस्ट गो लॉन्ग हियर? ओके, एंड दैट इज व्हाई वी केप्ट अ टारगेट ऑफ 15,500 ऑन द डाउन साइड. ये तो मैक्स था, वो ट्रेल करते गए थे. ठीक है, वरना इनिशियल लेवल तो 16,200 था, उसके नीचे 15,800 था. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस हियर. इधर ये देखिए, आउटसाइड रिवर्सल अगेन. ठीक है, फॉर इंडिकेटिंग द टॉप ऑल्सो आउटसाइड, बॉटम ऑल्सो आउटसाइड. ठीक है, अब इधर भी टॉप जो बन रहा है, क्या बन रहा है? एक्सट्रीम रिवर्सल दिख रहा है. ओके, सिमिलर केस, राइट. इधर भी अगर आप देखें, ऑलमोस्ट एक आउटसाइड रिवर्सल बनाने की कोशिश थी. सीइंग द प्राइस पैटर्न, ऑलमोस्ट एक कोशिश थी आउटसाइड रिवर्सल की, बट ये और नीचे आ सकता है. निफ्टी का हमने देखा, ये जोन जो है वो इधर बैलेंस आउट होने आ सकता है. ठीक है, अब हम सीपीआर भी लगा के देखेंगे उसको. सो आई विल टेक थिंग्स फास्ट नाउ, टाइम कम हो रहा है. सो ये देखिए, ये मैंने आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर बता दिया निफ्टी का, जिसको अब हम हटा देते हैं और सीधा चलते हैं 1 आवर पे. एंड लेट्स सी द चार्ट्स टू पिवोट. सो सी, अरे ये क्या है? भाई आप लोग हो ना? हाँ भैया, हाँ मुकुल भाई हैं अपने पे. हाँ हाँ, कुछ बीच में बोलते रहो यार, मुझे लगता है चलेगा ही सब. ठीक है भाई. Yes, we are there. देखिए, समझ लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आपको एटलीस्ट एक क्वार्टर का व्यू मिल जाएगा. मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, ये देखिए, ये है 1 आवर का चार्ट. अनटच्ड. मैंने जैसे कि कहा, निफ्टी इज मच मोर सिंपल देन बैंक निफ्टी. ठीक है, तो इसका एक रीजन है, ये देखिए. अब निफ्टी के सीपीआर लगाता हूँ, फिर आपको प्राइस एक्शन बहुत ही क्लियर है निफ्टी में. ठीक है, रादर देन बैंक निफ्टी. अब ये देखिए, लेट्स स्विच ऑन द सीपीआर हियर. मंथली भी ऑन कर लेते हैं. मैसिव, ये एरिया दिख रहा है आपको? मैसिव, राइट. ऑब्वियसली कोई भी देख के बताएगा कि प्राइस एक बार में तो नहीं तोड़ देगा इसको, राइट. दैट इज व्हाई 17,200 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ. कल अगर मार्केट, लेट्स से सपोज मार्केट गिरना भी शुरू हो जाता है, तो भी एक बार के लिए तो 17,200 पे आके रुक ही जाएगा फॉर श्योर. ठीक है, हो सकता है कि अगर कल गिर भी जाए, भले 200-300 पॉइंट गिर जाए, 17,200 के आसपास ही उसकी क्लोजिंग आनी चाहिए. व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग. तो आप देखिए, सिमिलर केस था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस है, लेकिन बैंक निफ्टी ने वो चीज कंप्लीट नहीं की. ओके, बट निफ्टी ने वो चीज अभी कंप्लीट कर ली है. तो आपको एक अंदाजा आ रहा है जो हमने एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी में, गैप डाउन, रेजिस्टेंस, अगेन ट्रैवलिंग फॉर अ डाउन मूव. आर यू ट्राइंग, मतलब आप कोरिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखिए, ये ऐसा कुछ मूव है. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम मच मोर कन्विंस्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन, बिकॉज ये निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है. आर यू सीइंग दिस थिंग? हाँ मुकुल भाई. हाँ जी, हाँ जी, यार दिख रहा है मुकुल भाई. वो तो ये देखिए, गैप, वही सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया और अब नीचे. ठीक है, मच मोर सॉर्टेड देन बैंक निफ्टी. तो निफ्टी इज वेरी क्लियर. निफ्टी अगर इधर से भी नीचे आता है इसके टारगेट्स में, तो आपको ऐसे ही बता सकता हूँ. ये देखिए, सबसे पहला टारगेट अगर कल आता है, मोस्टली ये इधर तक आ सकता है, ड्यू टू बैंक निफ्टी, जस्ट ड्यू टू बैंक निफ्टी. ठीक है, कल अगर ड्राइव होता है मोस्टली आईटी बैंक. अभी देखिए, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो मैं अभी बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा. इनिशियल टारगेट निफ्टी का ये, इधर तो प्राइस मोस्टली
हल्का सा जर्क ले सकता है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक इट विल जस्ट स्टॉप हियर, इट कैन कम मोर डाउन। बट इनिशियली अभी ये सब छोड़ेंगे, प्रैक्टिकल होते हैं पहले। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये देखिए अभी जो इसका वीकली है, पहली बात तो इसका वीकली, इसको जो वीकली सीपीआर है, पहली बात इसको क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो गैप फिल बीइंग कंप्लीटेड, दैट इज अराउंड 350 340 के लगभग के लेवल, ठीक है। तो कल इवन अगर गैप डाउन होता है, 120 पॉइंट का भी गैप डाउन हो जाता है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से सपोज निफ्टी इज ओपनिंग विद अ गैप डाउन ऑफ 100 to 150 पॉइंट्स, तो इमीडिएट आपका एक रिवर्सल एज इन बाइंग आ जाएगा टुवर्ड्स द सीपीआर। व्हाई? बिकॉज सी गैप है, वर्जिन सीपीआर है, एक जर्क लगा, ऊपर जाएगा, वापस हो सकता है वापस से ये देखिए कुछ ऐसा रफली, अभी मैं आपको बताने के लिए बता देता हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर इधर तक प्राइस खुल जाता है, सॉरी माय बैड, ये देखिए इसको हटा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। कल सपोज इधर कहीं प्राइस खुल रहा है, इधर कहीं खुल रहा है, लेट्स से 300 के आसपास, तो इमीडिएट एक ऊपर की तरफ आपको वापस एक पुल बैक दिख सकता है, वापस इधर से हम इधर आ सकते हैं, ओके। मोस्ट लाइकली वो बैंक निफ्टी पे भी डिपेंड करेगा, बैंक निफ्टी क्या मतलब आपको ये दिखा रहा है, प्राइस एक्शन दिखा रहा है अपने वर्जिन वीक के वर्जिन सीपीआर पे, ठीक है। बट निफ्टी जैसा कि मैंने कहा बहुत ही क्लियर है, निफ्टी इज मच मोर सॉर्टेड। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए निफ्टी के हायर चांसेस है कि अगर ये नीचे की तरफ डाउन मूव कंटिन्यू करता है, बिकॉज सी इट इज इन अ रेंज, ये भी सेम है, ये भी 11 अप्रैल ऑलमोस्ट 2 दिन की रेंज में ही चल रहा है। इफ यू सी, ये देखिए 2 दिन की रेंज ही है इसकी। दिस इज 11th 12th 12 13, ओके। 2 डे रेंज इसकी मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी 2 डे रेंज की तरह है, वही 440 600 के लगभग, ठीक है। तो ये देखिए अभी इट इज मच मोर सिंपल, अगर ये 440 के नीचे कल खुलता है, मोस्ट लाइकली ये इधर तक आएगा अप टिल 300, 280 से 300 320 के बीच, जो हमने चार्ट रूम में भी हमने लेवल्स देखे थे, ठीक है, सेम लेवल्स 280 से 300 के बीच। फर्स्ट जर्क, उधर से वापस एक पुल बैक वापस इस रेंज तक आ सकता है 380 420 तक, ठीक है। उधर से वापस हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं टुवर्ड्स दिस फ्रेश जोन। व्हाट इज दिस फ्रेश जोन? ये देखिए, दिस इज अ फ्रेश सप्लाई जोन, अनटच्ड। डेफिनेटली प्राइस एक बार इधर आएगा, और ये एरिया आपको याद है, ये एरिया क्या है? व्हाट इज दिस एरिया? इफ यू रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर व्हाट इज दिस एरिया? हमने अभी कुछ देखा था वीकली चार्ट पे। हेलो, एक्सट्रीम रिवर्सल मुकुल भाई नहीं, ये एरिया जो है वो क्या है, ये देखिए, ये मैं मार्क करके, एग्जैक्टली डिमांड जोन है, राइट। डिमांड जोन का एकदम लोअर, इसका लो देखो तो क्या है, 17,006 17,003, तो 17,000 आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, करेक्ट। इसको अगर तोड़ता है और उसके बाद देखिए 17,000 पे आपका, ये देखिए 30 मिनट्स पे चलता है, सॉरी 1 आवर पे थे, 17,000 पे आपका इमीडिएट एक मंथली पिवट भी कहीं आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी स्विच दिस ऑन, वर्जिन मंथली पिवट। सो वो लेवल भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, लेट्स चेक दिस टू, मे बी बुलिश, ये बुलिश हो सकता है, बुलिश जीपीजेड पिवट एंड डन। पिवट 12 monthly candle, okay, see it's a bullish GPZ, ठीक है, दिख रहा है आपको L3 अंदर। सो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा ये जोन,
देखिए जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे प्राइस एक्शन के थ्रू भी, 940 हमारा लेवल था, 960, सो ऑलमोस्ट 950 इसका भी आ रहा है। तो ये जो जोन है ना, ये पर्टिकुलर जोन, ये बहुत ही क्रूशियल है। इसके नीचे अगर निफ्टी जाएगा ना तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा कि कोई कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज आ रही है मार्केट में। ओके, वो हो सकता है कि एक्सट्रीम कुछ कोविड हो जाए या फिर वॉर कंटिन्यू हो जाए। अगर आपको याद है तो हमने एक वीसी में बात किया था जब हम वी वर ट्रेडिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन्स, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट वॉर, ट्रांजिशन ऑफ वॉर टू कोविड, विच यू कैन सी इज स्लोली हैपनिंग, राइट। वॉर धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है और कोविड के अभी जो ये न्यूज है वो काफी बढ़ती जा रही है, एंड मे बी वी कैन स्केल दैट अप इन कमिंग मई और जून इटसेल्फ। सो वो ट्रांजिशन में हम आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को तो पोजिशनल लॉन्ग है अगर आपके, तो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द स्टॉप लॉसेस, ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, हाँ स्ट्रक्चर चेंज होगा देन वी विल अगेन अक्यूमुलेट, बट अभी के लिए जिसके पास है वो थोड़ा ध्यान से, बिकॉज थिंग्स डू नॉट सीम राइट। सो ये देखिए, आई विल जस्ट switch this thing off. पिवट क्यों नहीं आ रहा है इसका? ओके, ठीक है, राइट। सो आई जस्ट स्विच ऑन द पिवट। सो ये देखिए किधर आ रहा है इसका पिवट, 16,900, वही जो बायर मैंने बोला था, 16,900 से लेके 17,060, ठीक है। इन बिटवीन लाइक 960 टू 100 पॉइंट्स की रेंज में अच्छे खासे बायर बैठे हैं इधर। ओके, इधर से एक इनिशिएटिव बाइंग शुरू हुई थी इन दिस, आफ्टर दिस बैलेंस एंड इनिशिएटिव बाइंग स्टार्टेड, इनिशिएटिव बायर्स आए हैं इधर, क्लियर कट साइन है, ठीक है। ये मैंने मनी जोन भी चार्ट भेजा था ग्रुप पे। ये एरिया में मनी जोन जो है, ये 5 डेज का जो मनी, इधर का जो मनी जोन था ना, ये सीधा मनी जोन वैल्यू एरिया के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दिया था सिंस दिस पर्टिकुलर डे, दैट इज 17th, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट आफ्टर अ वीक इट गेव अ क्लोजिंग अबव वैल्यू एरिया हाई, एंड उधर से इनिशिएटिव बाहर आपको आते दिखे फॉलोइंग द मनी जोन पैटर्न, जो मैंने चार्ट डाला भी था मनी जोन्स का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी इनिशिएटिव केम इन। इधर से ये बैलेंस से, ये देखिए इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस से एक्सेस हो गया, करेक्ट। अब एक्सेस से वापस बैलेंस में आया, बैलेंस से वापस ये वैल्यू ढूंढने जा रहा है। तो मोस्ट लाइकली, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू इसकी किधर मिलेगी, वर्जिन सीपीआर के लगभग, वीकली वर्जिन। तो सिमिलरली इसको भी अपनी वैल्यू इधर ही मिलेगी, बिकॉज निफ्टी इज मच अहेड ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। मतलब वो अपना जो डिस्काउंट है न्यूज का, वो फास्ट, इट इज लाइक मच मोर फास्टर कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सो वी कैन सी निफ्टी टिल ईयर ऑल्सो। बाहर बैठ, बाहर, सॉरी, ठीक है, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। सो अभी हम फटाफट देख लेते हैं व्हाट कैन, सबको निफ्टी का तो आई गेस निफ्टी का किसी को इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इट इज वेरी मच क्लियर हियर, ओके। आप अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके नीचे अगर ये जोन के नीचे जा रहा है देन डेफिनेटली इसको एक क्वेश्चन बनाएंगे हम। उसके नीचे अगर जा रहा है तो ये गैप भी है, ये गैप भी है, उसके बाद में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में तो ये भी एक अनटच्ड, यू कैन से इधर तक भी मोस्टली प्राइस आपको दिख सकता है, इधर या इधर, ठीक है, बिकॉज इधर भी एक इनिशिएटिव बाइंग आई है। बट फॉर टाइमिंग लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम 17,000 पे ही अभी के लिए रुकेंगे, ठीक है। 17,000 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तब हम वो बात की बात देखेंगे, बिकॉज अप टिल ईयर व्हाट वी कैन सी इज निफ्टी फॉल, निफ्टी बेरिश टू न्यूट्रल रह सकता है, और बैंक निफ्टी कैन कंप्लीट द टारगेट। बैंक निफ्टी अपना टारगेट इधर का कंप्लीट कर लेगा मोस्टली, ठीक है, इधर या इधर मोस्टली, और निफ्टी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में रह सकता है, एंड इधर से फिर दोनों एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। दैट इज व्हाट द आइडियल पिक्चर लुक्स आउट टू बी। बट एज वी आर सीइंग अ ट्रांजिशन ऑफ न्यूज फैक्टर्स, तो अगर 17,000 टूटता है, डेफिनेटली देयर इज अ ट्रांजिशन कमिंग, we will be transiting from war to COVID again, ठीक है, higher chances are there,
बिकॉज देखिए न्यूज चाहिए, इतने बड़े बैलेंस को हिलाने के लिए एक न्यूज चाहिए, ठीक है। और इस समय पे ऐसे पॉइंट पे जब प्राइस ट्रेड करेगा तो सबसे बेटर न्यूज क्या हो सकता है, या तो वॉर एक्सीलेट हो रहा है या तो फिर कोविड वापस आ रहा है। ओके, लाइक कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं या तो फिर वॉर एकदम कुछ न्यू यूज हो गए हैं, करेक्ट। तो आपको फिर ये प्राइस और नीचे जाते हुए दिखेगा। दैट इज अ पोजिशनल व्यू, बट फॉर टाइमिंग वी आर ओके विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, सो नाउ लेट्स चेक अबाउट निफ्टी। सीधा कल के लिए बात कर लेते हैं। ये देखिए निफ्टी भी ऑलमोस्ट नैरो सीपीआर के होने के बावजूद इट वेंट इनटू लाइक अ रेंज, ठीक है, रेंज बना के चल रहा है। तो मोस्टली इसका कल आपको ब्रेकआउट दिख सकता है इन द फॉर्म ऑफ गैप डाउन एंड जो भी कल होता है, ठीक है। ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। वी विल जस्ट स्विच ऑन टू दिस थिंग। ये देखिए ये रफली मैं मार्क कर रहा हूँ previous 2 days high and low, okay, 12th April या 12th April के मैंने मार्क कर दिया। ये देखिए राइट, ये इधर से वापस नीचे वो जिन सीपीआर को छू के नीचे, ये वो दिन था आई गेस, यही वो दिन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। yes, this was the day where we kept a view of this, or mostly this was the day if I'm not wrong, where we had a view of day highs का closing, ठीक है। हाँ यही वो दिन था, ओके, somewhere around here 580 से 420 के बीच। so now talking about tomorrow, see निफ्टी का भी अगर आप देखें तो 2 दिन के रेंज में है वो, 12th of March के 12th of April के रेंज में है। so again 17440 remains to be a crucial level। अब अगर हम इसको स्विच करके देखें what is happening, ठीक है, ये देखिए मेरे भाई, look this similar to बैंक निफ्टी, ठीक है, इसका भी सिमिलर एनालिसिस है। अगर तो कल ये खुलता है लेट्स से गैप डाउन बिलो 440, इनिशियली वी नो वेयर टू, लाइक हमने देखा 1 आवर में 300 280 से 300 के बीच में ये वापस से एक रिवर्सल लेके L3 या इधर तक 440 तक, L3 से लेके 440 के बीच में कहीं आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है और वापस इधर से नीचे, या तो फिर अगर हमारा न्यूट्रल ओपनिंग होता है तो सिमिलर केस ऑफ बैंक निफ्टी। ये देखिए सिमिलर एज इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, ये डीपी सेट, एक छोटा सा डीपी सेट जोन ऐसा कुछ बना के इधर सेकेंड हाफ में ब्रेकडाउन दे सकता है टूवर्ड्स 300, ओके, पॉसिबल लाइक दिस। और अगर ये नीचे खुलता है, लेट्स से गैप डाउन खोल देता है, देन अगेन ये जोन में आके ओपनिंग प्रिंट इधर आ रहा है तो सिमिलर ये एरिया को इधर टूवर्ड्स 280 300, ठीक है। और अगर इसने ऐसा कुछ ओपनिंग दे दिया, लेट्स से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर सीधा इधर ही गैप डाउन खुल रहा है, ये लेट्स से ये कुछ गैप डाउन खुल रहा है, अराउंड 200 पॉइंट्स का गैप डाउन है, कल 150-200 पॉइंट्स में कहीं गैप डाउन हो रहा है, तो फिर ये इधर से इमीडिएट सपोर्ट लेके इधर तक आ सकता है, इधर से वापस नीचे टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है, जो हमने 1 आवर में देखा। तो ये मैं चेंज कर देता हूँ कलर फॉर अ सेकेंड व्यू, इसका चेंज कर देता हूँ फॉर अ थर्ड व्यू, सो दैट यू हैव एवरीथिंग रिकॉर्डेड, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा निफ्टी बहुत ही ज्यादा क्लियर है, यू नीड नॉट लाइक लुक आउट फॉर एनीथिंग एल्स। अब निफ्टी का भी जो पिवट विद है वो अराउंड होगा 0.4 समथिंग, ठीक है, 0.4 और 5 के बीच में। तो सिमिलर केस निफ्टी में भी है, उसका आई भी कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
ठीक है, आईबी के बाद आप साइडवेज देख सकते हो और सेकेंड हाफ में हमें एक ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता देख सकते हैं। ठीक है, तो कल ये ओपनिंग प्रिंट पर डिपेंड कर जाएगा कि व्हाट इज द ओपनिंग प्रिंट इन निफ्टी। L3 मोस्टली आप समझ लो, पकड़ लो 410 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके नीचे खुला तो मोस्टली वापस 440 460 तक आएगा एंड देन अगेन डाउन। अगर इधर ही कहीं खुल रहा है, लाइक इधर ऐसा ही खुल रहा है एंड वापस ऊपर जा रहा है, 440 ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 400 के नीचे खुल के अगर ये जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी अगर 11 से पहले रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है तो सिमिलर निफ्टी भी ऐसा ही कुछ करेगा। गैप डाउन के बाद सिमिलरली वो वापस सीपीआर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जस्ट टू शो यू दैट द फॉल इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। बट ऐसा केस नहीं होगा, वापस इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे, मतलब ऐसा केस। ठीक है, ऐसा कुछ जो ब्लू लाइन है, right? So everything will depend upon the opening print and first half of the market to decide what can we trade for the upcoming days also. Very important. इसमें भी सिमिलर है आउटसाइड रिवर्स। तो मोस्टली कल मार्केट जो मुझे लग रहा है वो गैप अप गैप डाउन खुल के मोस्टली न्यूट्रल चला जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड हाफ में आपको वापस एक एक्शन आता दिख सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर इज द ओपनिंग प्रिंट इन बोथ ऑफ द इंडाइसेस। तो ध्यान रखिएगा कल के लिए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अभी नाउ टू कीप, देखिए अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ क्विक बिफोर लाइक गिविंग दिस पर्टिकुलर। या तो हाँ, ये देखिए, यू सी दिस थिंग, पर्टिकुलर थिंग, दोनों के रिजल्ट ये वीकेंड पे आए। अरे दोनों के रिजल्ट ये वीकेंड पे आए, राइट? एंड इफ यू सी ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम हैव इक्वल वेटेज। ठीक है, कल प्री ओपन में आपके ओपनिंग प्रिंट के साथ आपके प्री ओपन में एचडीएफसी और इन्फोसिस पे आप ध्यान रखें। अगर फॉर इंस्टेंस कल एचडीएफसी लेट्स से बैंकिंग सेक्टर ऊपर की तरफ है और निफ्टी नीचे की तरफ, आईटी नीचे की तरफ, तो आपको मोस्टली ये कंसोलिडेशन में मार्केट दिख सकता है। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, लाइक दोनों अपवर्ड्स है विच इज वेरी रेयर। ठीक है, अगर दोनों अपवर्ड्स है तो मार्केट फिर आपका जो मैंने कहा कि रिवर्सल के लिए ज्यादा तैयार हो जाएगा। आपको सेकंड केस याद है, जो सेकंड केस अभी मैंने इधर बताया था, ऐसा वाला 11 बजे पहले जो रिवर्स मारेगा वो वाला। ठीक है, सिमिलर केस वो इसकी वजह से आ सकता है। उसके लिए ये दोनों सेक्टर्स को ऊपर आना पड़ेगा या एनी ऑफ द वन सेक्टर हैज टू मूव अप। सबसे मेजर रोल जो कल प्ले कर सकता है ना, वो आपका ये हो, वो रिलायंस और एचडीएफसी ट्विंस कैन प्ले अ गुड रोल टुमारो। मोस्टली रिलायंस या फिर ये जितनी हेवी वेट, ये देखिए ऑलमोस्ट बैंक और आईटी है। ठीक है, कल जो मार्केट चलने वाला वो बैंक और आईटी से ही चलने वाला है ऑलमोस्ट। अगर आप देख लो टॉप 7 में भी, और कल गेम चेंजर जो हो सकता है वो ये होंगे मोटा भाई। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन जस्ट गो इन फॉर रिलायंस टू। जाना है करूँ रिलायंस का भी, थोड़ा टाइम है आपके पास, आप लोग हो ना? हाँ मुकुल भाई, हो ना? ध्यान से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। ये देखिए अब रिलायंस का फटाफट देख लेते हैं, बिकॉज आई फील दैट अगर कल निफ्टी कर रहा है कुछ भी नहीं होगा तो ये रिलायंस ही है जो नया पार लगा सकता है, सरप्राइज पैकेज हो सकता है कल रिलायंस। ठीक है, ब्रॉडर से ही चालू करते हैं। रिलायंस
क्या हो गया? ओके सी, ये देखिए अभी रिलायंस भी अगर आप देखो तो एक डाउन ट्रेंड में ही चले जा रहा है, लोग खोज नहीं, ठीक है। रिलायंस पहले अपवर्ड गया, फिर कंसोलिडेट हुआ और अब मार्कडाउन फेज में चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। रफली अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ रफली, ओके, ऐसा कुछ रफली। तो इधर अभी जो रिलायंस का मेजर रोल जो प्ले होगा वो ये होगा, ये देखो रिलायंस का म्यूट कर दो भाई, राजेश शेट्टी म्यूट। ये देखिए रिलायंस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो इधर का ही है, दिस पर्टिकुलर रेंज, तो उसने ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर लिया है। दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग लाइक रिलायंस कैन बी अ सरप्राइज पैकेज फॉर द मार्केट, ठीक है। 25 क्या है इसका 2530 प्रोटेक्ट करेगा तो मेरे ख्याल से वापस ऊपर की तरफ चैनल के ऊपर अपर बैंड को टच करने के लिए जाएगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। वो हम देखेंगे क्या, देख ही लेते हैं। इसको हटाओ, इसको ग्रीन करो। ये देखिए इसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट सब फिल्ड भी है, ठीक है। इधर तक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी के लिए, तो लेकिन निफ्टी इमीडिएट मुंह के बल गिर जाएगा अगर रिलायंस ऐसा चल गया तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं नीचे की तरफ, जस्ट बिकॉज हमारा सीपीआर इधर तक है फाइन ट्यून करने के लिए, ठीक है। तो हमारा लेवल क्या आ रहा है 25-25, 25-25, ठीक है। तो इधर तक रिलायंस इज सेफ इज व्हाट आई फील। इधर से एक छोटा सा पुल बैक आपको दिख सकता है, ठीक है, छोटा सा पुल बैक टूवर्ड्स योर डेवलपिंग वीकली सीपीआर, वो भी देखना है तो देख लीजिए। ऑलमोस्ट इधर ही है, देखिए। सो पुल बैक लेके वो वापस इधर तक आ सकता है, ठीक है। इसका ये कैमरेला भी देख लेते हैं, कैमरेला किधर आ रहा है। सो सी इट्स अ बेरिश, ये बेरिश कैमरेला, और L3 भी इसके देखिए जोन के इधर ही है, ऑलमोस्ट ईयर 25-25, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलायंस टू सस्टेन दिस थिंग। अब जो मुझे लग रहा है ना, देखिए, क्योंकि हेवी वेट्स के बीच में कंसोलिडेशन मार्केट अगर कंसोलिडेट होता रहेगा, ना तो बैंक ऊपर आ रहा है, ना तो आईटी ऊपर आ रहा है, ना तो बैंक नीचे जा रहा है, ना तो आईटी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा मार्केट कंसोलिडेशन में तो नहीं घूम सकता ना, करेक्ट। सो व्हाट कैन हैपन इज दिस कैन बी द सरप्राइज एलिमेंट। Reliance out of nowhere can turn the market picture, ठीक है, out of nowhere। बट हमें एटलीस्ट हमें इसका व्यू है, तो हमें इसका मैक्स एडवांटेज उठाना है, ओके। टिपिकली रिलायंस के जो ब्रेकआउट लेवल्स होंगे वो क्या होंगे 2580, डेफिनेटली अबव 2600 तो ये पूरा मार्केट ही अकेला ही उठा लेगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको गिरना है गिरने दो, रिलायंस एक बार ये तोड़ गया 2600, उसके बाद तो बैंक निफ्टी भले HDFC गिर रहा है 10% 15%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी माइट जस्ट कंसोलिडेट, नीचे जाके कंसोलिडेट होना शुरू करेगा, बट फॉल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा until and unless Reliance starts to fall. That is a wild scenario. But here what I think is Reliance can be a surprise element tomorrow, ठीक है, और for the coming week also। अगर ये 2525 से लेके 2500 राउंड नंबर है तो 2500 पकड़ लेते हैं, 2500 सस्टेन करता है तो, ठीक है, बिकॉज 2500 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, वीकली ब्रेकआउट। 2500 से 2525 इधर आप काफी कॉशियस रहेंगे इधर, बिकॉज दिस कैन बी अ पॉइंट वेयर द एंटायर मार्केट कैन रिवर्स अलोंग विद रिलायंस, ठीक है। जो ये मैंने बोला ना 380 से लेके 400 के बीच का पॉइंट जो है, 280 से लेके 300 का जो पॉइंट अगर आता है, तो इधर से जो रिवर्सल ऊपर की तरफ आएगा ना, वो आएगा रिलायंस की वजह से,
ठीक है, दैट कैन डेफिनेटली कम बिकॉज ऑफ रिलायंस टचिंग दिस वीकली सीपीआर, एंड इधर से वापस रिलायंस मार्केट की वैल्यू डिसाइड कर सकता है कि इसे इधर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, राइट। सो अगर इधर से रिलायंस सपोज इधर से टूट जाता है, देन 17,000 टूटने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। बट इधर से अगर रिलायंस रिवर्स होता है, पुल बैक लेता है, तो एटलीस्ट फॉल इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन फॉल होने के चांसेस हो जाएंगे अगर रिलायंस इधर से ही रिवर्ट होके वापस नीचे आना शुरू करता है तो। ओके, तो फिर हम देखेंगे निफ्टी का जो ये वाला सिनेरियो था, बिलो 17,000 वाला सिनेरियो। ओके, सो कल आप ये चीज ध्यान में रखिए, आपको कल चीज लाइव होते भी दिख सकती है अगर वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। मोस्टली रिलायंस कैन चेंज द गेम टुमारो, एंटायर गेम टुमारो, सो कीप अ वॉच ऑन रिलायंस डेफिनेटली। रिलायंस में अगर एक लॉन्ग ट्रेंड मिलेगा, भले स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, बट अगर सेटअप में इधर कहीं आपको रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, डेफिनेटली गो फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। विद स्मॉल क्वांटिटीज, डू नॉट रिस्क इट विद बिग क्वांटिटीज, बिकॉज मार्केट है, कुछ भी टर्न अराउंड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वॉर भी अभी पीक पे वापस चालू हो रहा है, एंड कोविड भी ऑलमोस्ट घूम रहा है। सो एनी न्यूज कैन डी एक्सेलरेट, और मतलब जैसे HDFC का हालत हुआ था, वैसे रिलायंस का भी हो सकता है। Okay, no big deal. So trade with very small quantity if you are going against the trend, remember. But this is a good opportunity which you can take a benefit of, ठीक है। So but play accordingly, जैसा कि मैंने बताया। So अभी हमने ये वीकली देख लिया, हम कल का देख लेते हैं, like what can Reliance do for tomorrow. Are you guys सबको समझ आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Are you guys understanding what I was trying to say? ये देखिए, ये बेरिश है, कल के लिए भी बेरिश। Yes. Okay, fine bro. Yes, clear. Okay, fine. See, where the daily L4 is, उधर सिमिलर पॉइंट पे ही आपका वीकली L4 है, वीकली L3 है। Look. अरे लुक, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, इसलिए मुझे काफी कॉन्फिडेंट है कि रिलायंस कैन बी अ गेम चेंजर अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है कल, तो डेफिनेटली पूरा मार्केट का आपको फेस टर्न होते दिखेगा सिंगल हैंडेडली, डिपेंडिंग ऑन मोटा बाय। ये देखिए, and this is not my personal bias, this is what the charts are trying to tell you, most possible scenario। ये देखिए, इधर I will switch on to daily, look, perfectly a hot zone, 25 एक hot zone है, हो सकता है इसके नीचे जाए, no doubt इसके नीचे भी जा सकता है, but remember closing and क्रॉसिंग हो रहा है, नो डाउट, नो इश्यूज, हमारे पास क्वेश्चन है 2500 का, क्रॉसिंग हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्लोज अगर इसके नीचे हो गया 1 आवर पे, ठीक है, तो फिर हायर चांसेस है कि हमें रिवर्सल के लिए वेट करना पड़े। लेकिन 1 आवर पे अगर नीचे क्रॉस हो रहा है लेकिन क्लोज ऊपर हो रहा है ना, डेफिनेटली दिस इधर यही पॉइंट होगा जहां से रिलायंस पूरे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। सो कीप अ वॉच ऑन दैट। सो मोस्टली जो हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रेडिंग रेंज डे दोनों में दिख रहा है, तो इसका सिनेरियो रिलायंस की वजह से बन सकता है, मोस्ट फेवरेबल सेटअप्स, ठीक है। कल गैप डाउन खुलता है, हम साइडवेज रहेंगे, सेकेंड हाफ में हम वापस अपवर्ड्स जा सकते हैं अगर रिलायंस रिवर्स कर जाता है तो। सो कीप अ चेक ऑन पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑल्सो, लाइक HDFC, बैंकिंग और IT पे तो खास नजर रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कल पूरे मार्केट को बैलेंस इम्बैलेंस कर सकते हैं, और खासकर तो रिलायंस पे एक कैटालिस्ट की सिग्नल कैटालिस्ट के दौर पे। और सिमिलरली आपका सेक्टर्स के इसमें अगर हम देखेंगे तो सेक्टर्स के इसमें मेटल्स को आप मेटल्स, PSUs, PSEs, FMCGs, इन सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो भी एक कैटालिस्ट वर्क कर सकते हैं, अगर सब नीचे गिर रहा है तो वो लोग बैलेंस आउट करने के लिए ऊपर आ सकते हैं। ओके, सो वो चीज हम कल देख लेंगे, वो चीज भी अभी बहुत लंबी हो जाएगी,
ठीक है, बट शॉर्ट में आपको सब कुछ बताने के लिए मैंने ये सब शॉर्ट में बता दिया है। सो आई होप ये मैंने खाली इंट्राडे के लिए नहीं बताया है, रिमेम्बर आई हैव टॉक्ड अबाउट एटलीस्ट अ वीक, और अप्रैल एंड तक भी आप इसको व्यू को इंटैक्ट रख सकते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म ही व्यू बता दिया है मैंने, ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स का व्यू है। अगर कहीं ब्रीच वीच होता है तो फिर हम वापस उसको रिव्यू करेंगे, बट अंटिल दैट वी आर सॉर्टेड। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। यस अंकुल भाई। तो आई गेस इधर तक अब मेरी भी और शक्ति नहीं है। थक गया भाई मैं भी। भाई इतना बोलते रहते हो आप। हाँ, अरे नहीं, इसके बाद एक्चुअली मेरा एक और वीसी है अभी, मतलब इसके बाद थोड़ा। हाँ जी, इसके बाद फिर से? हाँ जी, मेरा प्राइवेट ग्रुप का वीसी है। ओह, सो वो भी होगा। हाँ जी, सो देखिए इधर क्या लिखा आपने, इतना काफी है ना। देखिए मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ तो बता दिया है, मेजर पॉइंट्स तो मैंने सारे बता दिया आपको, राइट। रिकॉर्डिंग में स्टॉप